So, I welcome you all. Today, today's topic is very interesting because I'm going to discuss about migration of people and the cultural interaction. And first, I will discuss what are the major causes of migration. There are three major causes. First one is climate change. Second one is expansion or साम्राज्यवाद, राइट जो एंशंट टाइम्स में भी था। राजा लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे और या अपना साम्राज्य का विस्तार करते थे. That was one of their prime duties, that was considered as their prime duties or dharma. What was their dharma? Kingship, to expand their territory or of influence. So first one, climate change. Second one, Samrajyavad. In today's time, the powers expanding, the NATO powers and the Russian power, the influence area, now became the multipolar world, the Chinese influence of area, Russian influence of areas, American influence, European influence like UK, former colonists. And third one is trade, global trade, right? So these are the three major causes of migration of people. First one, climate change, forced migration of refugees. So how refugees are integrated into new place or new society is very well known, that sometimes they are welcomed, but most of the time they suffer a lot, right? In the camping sites, they are mostly unacceptable in any states, refugees, right? आप बांग्लादेशियों का हालत देख लो इंडिया में, वो पहले घुसपैठ कर लिए उन्होंने, और they were available as a cheap labor, they were exploited as a cheap labor, then they became a vote bank, and then finally the fundamentalist government came who kicked them out. So when we talk about the forced migration due to climate change, as happened at the time, during the Vedic times, the Aryans migration from 1500, right? So Aryan, there are two things. One is the Aryan migration and second one is the Aryan invasion. So Aryan migration started much before 1500, in fact 2200 itself. So people were migrating due to climate change. The major climatic event took place, what is known as the 4.2K event. 4200 साल पहले, आज से 2200 BCE में, before Christ era, there was a major climate change took place, जिससे कि Bronze Age is divided in two phases: early Bronze Age, later Bronze Age. So early Bronze Age, 3200 BCE to 2200 BCE. Then this major event took place, and 2200 BCE to 1200 BCE. 1200 BCE, another major climate change, what is known as 1177 event, right? So so that ended the Bronze Age itself. Then we entered into Iron Age. So 4.2K event which took place 4200 साल पहले, 2200 BCE. उसके बाद 1200 BCE में Bronze Age खत्म हो गया, Iron Age चालू हो गया due to climate change. Climate change is one of the major factor. So climate change was the one of the major. उसके बाद climate change से associated बहुत से होते हैं, मतलब natural calamities, right? Volcanoes, earthquakes, all these things.
और पेंडेमिक्स पेंडेमिक्स होते हैं। तो ये दोनों जो है क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट्स है। क्या है? एक तो कैलेमिटीज, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट क्या है? नेचुरल कैलेमिटीज एंड पेंडेमिक्स, दीज आर द टू, और मेडिकल diseases and increase of diseases and all those things. So उसके चलते जो माइग्रेशन होता है लोगों का, वो रिफ्यूजीज जो हैं दूसरी जगह पर शरणार्थी की तरह से जाते हैं। और इंडिया कितनी भी बकवास कर ले, अतिथि देवो भव और अतिथि देवो भव, ऐसा कभी भी अतिथि देवो भव हुआ ही नहीं है। उस समय जरूर था, उस समय जब आर्यन जब आए थे शुरू में, उस समय होता होगा अतिथि देवो भव। तो आर्यंस जो है, जो माइग्रेट होके एज ए शरणार्थी आए होंगे 2200 BCE से लेकर और लगभग 1800 BCE और 1500 तक चले आइए। तो उस दौरान में जो माइग्रेशन हुआ वो किसका हुआ? बैक्ट्रिया रीजन से, अगेन बैक्ट्रिया रीजन हिंदू कुश के उत्तर में, उत्तर कुश रीजन की बात हो रही है। वहां से जो सेंट्रल स्टेप्स थे, जो मोस्ट फर्टाइल लैंड कौन सा दुनिया में है? दुनिया में जो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड होता था उसको बोलते हैं सेंट्रल एशियन स्टेप्स, ओ सॉरी सेंट्रल एशियन, मध्य एशिया का मैदानी इलाका है, जो कि कहां से कहां फैला हुआ है? वो साइबेरिया से लेकर और हॉलैंड तक पूरा फैला हुआ है, यूरोप तक, यूरोप से लेकर साइबेरिया तक, वो पूरा का पूरा मैदानी इलाका सबसे बड़ा फर्टाइल लैंड हुआ करता था। तो वहां पे दो तरह के लोग ब्रॉडली रहते थे। एक तो चारवाहे, जो कि एनिमल्स को, जो कि नोमैड्स होते थे, जो कि एक जगह स्थिर नहीं होते थे, बंजारे टाइप के, वो चरवाहा पशु को पालन करते थे, भेड़ और बकरी और गाय और घोड़े, उनको चराते थे। और जाड़ा आड़ा का सीजन आता था तो वो कहीं वहां पर रुकते थे, कहीं पर वो अपना टेम्परेरी निवास बना लेते थे। तो एक तो ये हो गए नोमैड्स, और दूसरे होते थे सेटल्ड कम्युनिटीज। सेटल्ड कम्युनिटीज जो होती थी वो फार्मिंग कम्युनिटीज होती थी, हाँ। तो वो अपने सेटल्ड जो कम्युनिटीज होती थी, पहले वो अपने खेत में ही के बीच में ही घर बना लेते थे और वहीं रहते थे। लेकिन फिर क्या हो गया कि ये सेटल्ड कम्युनिटीज हैं, इनको हमेशा जो चारवाहों से जो था ना, जो कि पशुपालन जो वाले जो थे लोग, ये लोग अटैक करते थे, क्योंकि इनका तो कोई निवास होता नहीं था, तो ये खट से अटैक करके लूट लाट के भाग जाते थे। तो ये उस समय की सिचुएशन थी। जो चारवाहों को आज हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? यादव, अभीर, अहीर, है ना? अभीर इनको बोला जाता था। अभीर मतलब जिनको डर नहीं लगता। अभीर मतलब बेसिकली गुंडे, मवाली, बंजारे, जो कि लूट खसोट पे और सब पे जीवित रहते थे, है ना? इनको और भी जानते हैं हम लोग, उनको जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? अहीर, अभीर अभी सब मैंने बताया, और अभी और एंशियंट नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ये गुज्जर जो लोग, सो जो आर्यों में जो एक मेजर ट्राइब होती थी, गुज्जर होती थी, और दूसरी होती थी जो किसान लोग होते थे, उनको जाट बोलते थे, जरित। तो जेंड अवेस्टा वगैरह में उनको जरित बोला गया। और अपने ऋग्वेद में जरित्री आता है वर्ड, जरित्री, जरित, जिससे बाद में जाट,
जाट जाट जूट, ये सब जो है कहाँ बोला गया, मेगस्थेनी की इंडिका में, है ना। तो तो जितने एंशंट लिटरेचर हमें मिलते हैं उसमें सब में ये वर्ड आता है, जाट जूट, जरित्र, ये सब। तो ये फार्मिंग कम्युनिटीज होती थी कहाँ पर, सेंट्रल एशियन में, जो कि मैदानी इलाका था। फिर क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज से वो लोग को दक्षिण में, दे मूव टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, राइट। So just I am discussing about India actually. So I am more interested in the migration, जो साउथ में जो माइग्रेशन हुआ उनको, तो वो मैदानी इलाकों को पहले बोला जाता था वहाँ पे जहाँ पे इंडोसीथियंस का इलाका है ना, इंडो यूरोपियंस पश्चिमी साइड में, है ना, पश्चिमी साइड में जहाँ पर यूक्रेन वगैरह है ना, यूक्रेन में वहाँ सब आर्यन रहते थे, उनको वहाँ पे यमनिया कल्चर बोलते थे, और इंडो यूरोपियंस। और आप इधर बीच में आ जाओ, कजाकिस्तान, उरल माउंटेन के आसपास, उरल माउंटेन कहाँ, मतलब अरल सी के ऊपर उरल माउंटेन। फिर इसके बाद आता है तरीम बेसिन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब उरल माउंटेन के आसपास कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से आप जो है नीचे दक्षिण में फिर आप आ जाते हो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। तो ये तीनों तान जो हैं, स्थान स्टेट्स, कितने हैं, 5। कौन कौन से 5 हैं, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा है, और उज्बेकिस्तान उसके बाद, जहां समरकंद और ये सब थे इलाके। तो समरकंद का नाम बहुत आपने हिस्ट्री में सुना है। तो ये पूरा इलाका जो था इलावर्त का, जहां पर इंडो यूरोपियन, फिर इस इलाके में बीच वाले इलाके में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडो ईरानी लोग हैं। और थोड़ा सा आप तरीम बेसिन की तरफ चले जाइए तो मंगोलियन मतलब तरीम बेसिन, मतलब आप काशगर वगैरह की, जिनजियांग प्रोविंस जो है ना, मतलब लद्दाख के राइट साइड में, ठीक है। तो जो इंडिया का बॉर्डर है लद्दाख और तिब्बत से, तो उधर तिब्बत साइड में काशगर, तो वहां पर भी यूजी ट्राइब रहती थी, यूजी, जो कि चाइनीज लोग उन्हें यूची बोलते थे, यूजी, YUZHI, यूजी। ये यूजी जो क्लैन था, यही जो बाद में जब तुर्कमेनिस्तान में तरीम बेसिन क्रॉस करके जब बल्ख रीजन में आया तुर्कमेनिस्तान में, तो इन्हीं को कुषाण बोलते थे, कुषाण, कनिष्क। तो बेसिकली इन सब का माइग्रेशन होता था उस रीजन में, मेजर माइग्रेशन होता था, जिसका सेंटर था तुर्कमेनिस्तान। सेंटर क्या था, जो ऑक्सस रिवर बहती है पामीर माउंटेन से, हिमालय के ऊपर पामीर माउंटेन, सुमेरु पर्वत से जो ऑक्सस रिवर निकली, जो अरल सी में जाती है, उसके साउथ में तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उसमें 2 कैपिटल थे, मेजर एरिया सिटीज थी, बल्ख और मर्जियाना। बल्ख को बाद में बैक्ट्रिया बोलने लगे, जब यूनानी लोग आ गए, अलेक्जेंडर वगैरह, तो उसको बैक्ट्रिया कहने लगे। तो बैक्ट्रिया एंड मर्जियाना को बाद में मजार शरीफ बोलते हैं। तो बैक्ट्रिया, मर्जियाना, बल्ख, मजार शरीफ, जो कि हिंदू कुश माउंटेन के ठीक ऊपर है ना, ऑक्सस रिवर के दक्षिण में, यहाँ ये बीच में ये सेंटर प्लेस थी, जहां से सारी ट्राइब्स हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस करके इंडिया में एंटर करती थी। तो कौन से मेजर पास था, मेजर पासेस यहीं से थे हिंदू कुश के, है ना, हिंदू कुश माउंटेन, जहां पर हिंदुओं का पहले
सबसे पहले इंटरेक्शन होता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट पीपुल का फॉरेनर से, जो इंटरेक्शन होता था सबसे पहले वो इधर ही होता था। नीचे घुसते ही फिर आपका फिर आ जाता है पेशावर, जलालाबाद, है ना। फिर आप और थोड़ा सा राइट साइड जाओगे तो तक्षशिला, इस्लामाबाद, फिर पंजाब में इंटर हो जाते हो, इस्लामाबाद वगैरह। तो सॉरी, जब आप हिंदू कुश माउंटेन क्रॉस करके आते हो तो पहले तो अफगानिस्तान पड़ता है ना, पहले तो काबुल, गजनी, ये सब चीजें पड़े, गांधार। तो ये तीनों जो हैं पड़ते हैं, गांधार, काबुल, गजनी। उसके नीचे जब आओगे तो आपका ये आ जाता है पाकिस्तान एरिया में, है पेशावर और जलालाबाद और ये सब। तो ये सब जो है मेजर सिटीज जो थी वो फॉर्म हुई। और ड्यूरिंग सिल्क रूट जब डेवलप हुआ, तो सिल्क रूट तो डेवलप हुआ जबकि ग्लोबल ट्रेड वगैरह फ्लरिश होने लगा, पर वो तो बहुत बात की बात है। पहले तो अभी चल रहा है क्लाइमेट चेंज का इशू, जिससे कि लोग आर्यन माइग्रेशन हुआ एंड दे स्टार्टेड सेटलिंग टू नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, मोस्टली पीसफुली initially. They were welcomed and that was the period फिर जबकि ऋग्वेद वगैरह 1500 वगैरह में लिखा जाना चालू हुआ। 1500 में ऋग्वेद लिखा गया, 1600 के आसपास रामायण हुई थी, मोटा मोटा बात समझ लीजिए। 800 के आसपास जो है महाभारत हुई थी। ये सब मैं पिछले उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। तो लेकिन उसका सीक्वेंस, प्रोग्रेस कैसे हुई? प्रोग्रेस हुई क्लाइमेट चेंज से, माइग्रेशन से। बाद में क्या हुआ कि माइग्रेशन जो होता है वो तो फोर्स्ड होता है, उसमें जो रिफ्यूजीज होते हैं दे आर डिनाइड द इक्वल राइट्स, ऑफ कोर्स दे आर सेकेंड ग्रेड सिटीजन, they are not even given citizenship or they are right। तो उनके संग डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है, उनको they are exploited as a cheap laborer, right। तो बाद में क्या हुआ, इन्वेशन हुआ, then by force people started coming by invasion or attack, and that attack I told you the attack could be due to two reasons। एक तो हो गया कि जो लोग खदेड़ दिए जाते हैं किसी बड़े अटैक से, जैसे कि नॉर्थ में जो इंडस इथियंस वगैरह रहते थे इलावर्त में, उन्होंने नीचे जो रहते थे लोगों को, कहाँ नीचे, बल्ख और मर्जियाना, मजार शरीफ में, उन लोगों को जब खदेड़ा तो वो लोग नीचे आए, और वो नीचे आए तो उन्होंने भी अटैक किया नीचे के लोगों पर, ठीक है ना। अब ये जो अटैक है ये बिल्कुल लेजिटिमेट चीज है, लेजिटिमेट इन द सेंस धार्मिक है। क्यों है धार्मिक है? क्योंकि आप अटैक नहीं करोगे तो कैसे सरवाइव करोगे, ठीक है ना। जब क्राइसिस होती है तो कौन सरवाइव करता है? जो ज्यादा फिट होता है, जो ज्यादा ताकतवर होता है, वही तो ज्यादा सरवाइव करेगा ना। तो ताकत का प्रयोग जो है वो धार्मिक कब होता है? जबकि कोई चारा ना हो अटैक करने के अलावा, जब सर्वाइवल का क्वेश्चन होता है। तो that was the situation with the Aryan invasion. So Aryan invasion was not a wrong thing that time. It was a dharmic crusade. क्रूसेड समझते हैं ना, जो यूरोपियन हिस्ट्री जानते हैं लोग, धर्म युद्ध लड़ना पड़ता है। क्यों लड़ना पड़ता है? क्योंकि हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, हमें खदेड़ दिए। जब दूसरे लोगों ने खदेड़ दिया हमें, और दूसरे लोगों ने क्यों खदेड़ा? क्योंकि उनका भी सर्वाइवल मुश्किल हो गया, तो उन्होंने, जब उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया तो उन्होंने नीचे अटैक किया, नीचे ने अटैक किया और नीचे तक आते गए। तो ये लोग जो आकर फिर
इंडिया में बसे। किधर? इंडिया मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। ठीक है। फिर जब ये लोग बसे 1500 से लेकर 600 के बीच में, 1500 बीसी से लेकर 1600 बीसी के बीच में कई अटैक इन लोगों के हुए। इन्वेजन कोई एक समय में एक सिंगल अटैक नहीं हुआ ऐसा कुछ कि उन्होंने बड़ी सेना इकट्ठा करके और बड़ा प्लान करके और एक साथ का अटैक कर दिया, ऐसा नहीं। छोटे छोटे अटैक होते रहे और वो लोग सेटल होते रहे। तो सेटल होते होते वो नॉर्थ वेस्ट से फिर वो पंजाब, फिर नीचे सिंध तक आ गए। फिर सिंध से वो फैले 2 रीजन में। सिंध से पहले फैले मथुरा, मालवा ये रीजन में। मालवा मतलब एमपी, भोपाल के आसपास। मथुरा, मालवा, और दूसरा जो आया नीचे उज्जैन, नासिक, जिसको कि हम लोग पश्चिमी क्षत्रप बोलते थे। और क्षत्रप, ये लोग शक लोग बोले जाते थे। जो सिंध में जो लोग आए, इनको सिंध वाले लोगों को बोलते थे शक। हाँ, तो लोग जो है कंफ्यूज करते हैं, सिथियन कौन, शक कौन। तो शक जो है, जो इंडस वैली में जो लोग सेटल थे, जो कि इंडिया में इन्वेट किए, दो भागों में विभक्त हो गए। एक उत्तरी क्षत्रप, मथुरा मालवा रीजन वाला, और दूसरा पश्चिमी क्षत्रप, मतलब भारत के पश्चिम में उज्जैन, नासिक वाला वेस्टर्न क्षत्रप। तो ये शक थे। इन शकों का जो ओरिजिन था, मैंने बताया कि ये सब जो है ऊपर से इंडोसिथियन लोग और यूनानी लोग, बाद में यूजी लोग, बहुत से इसमें ट्राइब मिक्स थे। ईरानी मेजर इसमें था। ईरानी जो शक जो थे, जो इंडस वैली में आए, उनमें मेजर जो था वो ईरानी था। ठीक है ना। पर ईरानी पीपल कौन है? वो भी वहीं से आए थे, बल्क से ही आए थे। तो ईरानी भी कहने का मतलब ये नहीं वो ईरानी कोई अलग हो गए। ईरानी भी वही बल्क के लोग ही थे। उनका भी ओरिजिन वही था, कॉमन ओरिजिन था ना। जब वो दक्षिण में आए तो उनकी एक ब्रांच ईरान में भी चली गई, जो जोरास्ट्रियन ब्रांच। सो 1500 के आसपास जो दक्षिण में हिंदू कुश माउंटेन क्रॉस करके जो लोग आए अफगानिस्तान और इंडिया में, और एक ब्रांच कोपेक डैग जो है माउंटेन रेंज है हिंदू कुश, और उसके दूसरी तरफ कोपेक, ये हिंदू कुश हो गया माउंटेन रेंज, जिसके नीचे अफगानिस्तान। दूसरा कोपेक डैग ईरान का बॉर्डर, ईरान की माउंटेन रेंज, तुर्कमेनिस्तान और ईरान की माउंटेन रेंज। तो दूसरी ब्रांच जो है उनकी माइग्रेट होकर ईरान चली गई, और उन्होंने जोरास्ट्रियनिज्म का करा। तो जैन अवस्था भी ऋग्वेद के बोलते हैं 100 साल के अंदर ही लिखा गया। मतलब अगर 1500 में ऋग्वेद लिखा गया तो 1400 में जैन अवस्था लिखा गया, सबसे पुराना। फिर जैन अवस्था की जो वही है कि बाद में अलेक्जेंडर वगैरह का जब अटैक हुआ तो उन्होंने पूरा सब जला दिया। जैन अवस्था का जो मैनुअल्स वगैरह थे वैसे ही। तो फिर उनके जो बचे, जो ग्रीक और रोमन वगैरह में जो कॉपियाँ कुछ कुछ बची नहीं, तो उससे वो मिलता है जैन अवस्था का जो भी बचा खुचा। जैसे कि ऋग्वेद का भी वही हाल हुआ। उसमें मेजर चीजें खत्म हो गई, फिर कुछ बची रही। तो जो माइग्रेशन ऑफ पीपल होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, रिफ्यूजीज की वजह से, फिर जो इन्वेजन होता है, इन्वेजन भी 2 कारणों से होता है। एक तो फोर्स्ड है ना, सर्वाइवल के लिए, वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ही होता है। और दूसरा जो होता है एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन जो कब होता है, जबकि
पुअर रीजन से रिच रीजन की तरफ। तो उस समय जो रिच रीजन था वो इंडिया, जब लोगों ने इंडिया में आए तब देखा कि भाई ये तो बहुत ही रिच रीजन है। जब ईरानी वगैरह जब आए इंडस वैली में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो डिक्लाइन में थी, लेकिन तब भी वो लोग, जैसे साइरस द ग्रेट के समय ही उसके जितने भी उसके बोलते हैं 10 प्रोविंसेस थे, उसमें 10 प्रोविंसेस में जो इंडस वैली वाला जो प्रोविंस था उसी से 80-90% रेवेन्यू आता था। नो सॉरी, मोर देन 1/3 रेवेन्यू जो है वो खाली एक रीजन से आता था। तो उन्होंने कहा कि अरे सारा 9 रीजन एक तरफ और इंडस वैली एक तरफ, इतना खाली एक तरफ से आ रहा है, तो ये तो बहुत ही रीजन है, तो इधर ही ज्यादा कंसर्न, बिजनेस सबसे ज्यादा इधर ही चलता है। तो वो चाहता था इंडस वैली पे कंसोलिडेट करना, ईरानियों ने चाहा, पर वो कंसोलिडेट जो है वो 200-300 सालों तक कर पाए, 550 बीसी से लेकर और 250 तक। साइरस अकमेडियंस के बाद सेल्यूसिड एम्पायर, डेरियस तक तो बहुत ही इनका स्ट्रांग होल्ड था, 550 से लेकर 450 तक तो बहुत होल्ड था इनका तगड़ा। उसके बाद डिक्लाइन होना चालू हुआ जब पार्थियंस आ गए, और मीडियंस को तो इन्होंने खदेड़ दिया। तो मीडियंस लोग ही ये जो ईरानी लोग हैं जो हम बोल रहे हैं, इनको बोलिए मीडियंस या मित्रा। तो इनको उस समय मैंने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी 2 ट्राइब्स हुआ करती थी मिथरास की, सन वर्शिपर्स की, औधेय और अर्जुन नायन। खैर जो भी है, तो ये मीडियस पीपल वर किक्ड आउट बाय साइरस द ग्रेट एंड डेरियस द टू। उसके बाद क्या हुआ, सेल्यूसिड एम्पायर जब आया, तो सेल्यूसिड एम्पायर ने फिर इधर कब्जा कर लिया, बल्ख सब। लेकिन इवेंचुअली दिस सेल्यूसिड ईरानी वर किक्ड आउट फ्रॉम नॉर्थ, है ना, पंजाब रीजन और अफगानिस्तान और बल्ख, बाई दिस कुशानास। जब ये कुशान आए तो इन्होंने खदेड़ दिया इन लोगों को, तो ये लोग फिर आ गए नीचे एज यूजुअल। तो ये सारे जो अटैक होते रहे, ये पीरियड जो ट्रांजिशन पीरियड जिसे मैंने बोला है 180 बीसी या 200 बीसी, 200 बीसी में पहला अटैक यूनानी का भारत में हुआ था डेमेट्रियस I के द्वारा। तो 200 बीसी से लेकर 150 एडी तक 350 साल ट्रांजिशन पीरियड, जिसमें कि भारत में कुषाण आए, यवन आए, सबसे पहले बैक्ट्रियंस, कुषाण आए, ईरानी आए, पार्थियंस आए, उसके बाद तो हूण वगैरह, हूण मंगोल सब आए, तुर्क सब आए। लेकिन ये 350 साल का पीरियड था, ट्रांजिशन पीरियड, जिसमें कि युग परिवर्तन समझ लीजिए कि युग परिवर्तन, जिसमें कि जब बाहर से लोग अटैक कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 मैंने कॉजेस डिस्कस किए, क्लाइमेट चेंज और एक्सपेंशन, और तीसरा ट्रेड। सो ये पीरियड था जबकि सिल्क रूट डेवलप हुआ, ग्लोबल ट्रेड हुआ, और ग्लोबल ट्रेड के जरिए लूट खसोट चालू हुई जैसे आजकल है। तो ये पीरियड मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, इसका आजकल का सिग्निफिकेंस क्या है, एग्जैक्टली द सेम चेंज। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पेंडेमिक्स हो रहे हैं, लोगों का माइग्रेशन हो रहा है, रिफ्यूजीज बहुत से आ रहे हैं। इसमें जो पावरफुल हो लोग हैं वो जो पावर हैं वो अपना एक्सपेंशन कर रही हैं। चाइना, जापान करके हार चुका चाइना में, अभी जापान कहीं नहीं। अब कोरिया जापान की कहानी खत्म, अब चाइना कर रहा है, रशिया कर रहा है। रशिया बचने में, अपनी इन्फ्लुएंस को वापस लेने में पड़ा हुआ है, और यूरोप अपने इन्फ्लुएंस को वापस लेने में पड़ा हुआ है। तो रशिया और यूरोप की प्रॉब्लम क्या है कि उनका इन्फ्लुएंस कभी हुआ करता था, आज नहीं है। पर
वो डिक्लाइन में है, पर डिक्लाइन में भी उनको उनके लिए सर्वाइवल का क्वेश्चन है बेसिकली। तो रशिया और चाइना के लिए रशिया और यूरोप के लिए सर्वाइवल का क्वेश्चन है, और अमेरिका और चाइना के लिए साख या पावर का क्वेश्चन है कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो वर्ल्ड इज ब्रॉडली डिवाइडेड इन अगेन बाइपोलर, चाइनीज इन्फ्लुएंस एंड अमेरिकन इन्फ्लुएंस। ठीक है, वैसे ही ग्लोबल ट्रेड चल रहा है, उसमें आपको सब पता है कि यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी है विच इज अंडर चेक। ऑयल एंड गैस जो है मेजर, ऑयल एंड गैस और सेमीकंडक्टर्स अभी दो मेजर ड्राइवर्स हैं इकोनॉमी के, हैं सेमीकंडक्टर्स, जो कि सेमीकंडक्टर ताइवान मेजर हब है, आपको पता है, इसलिए वो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाइना ताइवान वाला। और ऑयल एंड गैस के लिए मिडिल ईस्ट हब होता था, पर अब जो है यूएसए के पास भी काफ़ी ऑयल एंड गैस हो गया है, तो उसमें यूएसए को बहुत सी ऑयल एंड गैस में उसका कम हो गया इंटरेस्ट, पर चाइना के लिए ऑयल एंड गैस इंपॉर्टेंट है। तो अब यूरोपीय तो अब जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, दे आर गेटिंग मोस्ट ऑफ द रेवेन्यूज फ्रॉम चाइना एंड इंडिया एंड यूरोप, क्योंकि यूएस का इन्फ्लुएंस अब कम हो गया। तो सऊदी से लेकर सारी जितनी कंट्री मिडिल ईस्ट की, वो अब यूएस की तरफ लेस इंक्लाइंड, मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स यूरोप, चाइना एंड इंडिया। ये इक्वेशन चेंज हो गई। पर कहने का मतलब ये है, क्लियरली ग्लोबलाइजेशन चालू हुआ उसके पहले से, कोल्ड वॉर के समय से ही, वैसे देखें तो वर्ल्ड वॉर से ही, मतलब 1900 से चालू कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, 1900 से हम लोग ट्रांजिशन पीरियड में चल रहे हैं। अब ये ट्रांजिशन पीरियड कितने साल का होता है? कम से कम 250-300 साल का तो होता है। इसके पहले मैंने 3 ट्रांजिशन पीरियड पिछले टॉक्स में डिस्कस कर चुका हूँ। पहला ट्रांजिशन पीरियड 200 BCE से लेकर 150 AD तक। सेकेंड ट्रांजिशन जब तुर्क लोग आए भारत में 1000 AD से लेकर 1250 AD तक, है कब से? महमूद गजनवी से लेकर, मोहम्मद गौरी से लेकर, और सल्तनत एम्पायर कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद रजिया सुल्तान से लेकर तुगलक और खिलजी, ये सब लोग जो 1000 से लेकर 1250, वैसे देखें तो 1300 तक कर लीजिए, 1300, 1000 से लेकर 1300, क्योंकि 1300 लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि तैमूर लंग जो आया था, तैमूर लंग जो था करीब 13th के एंड में जो है चंगेज खां का आक्रमण हुआ था पहले, ठीक है ना। तो चंगेज खां को तो खिलजी ने पछाड़ दिया था, तो लकीली चंगेज खां इंडिया में एंटर नहीं हो पाया। लेकिन उससे बड़ा जो है तानाशाह चंगेज खां जितना ही पैदा हो गया तैमूर लंग। कहाँ पर? वही बल्ख में, वही है सेंटर पॉइंट, वही है। तो तैमूर लंग वहां पे पैदा हो गया, फिर वही बल्ख रीजन में। तो उसने कहा कि यार ये लोग, ये हम लोगों को इंडियन को इन्फिडल्स कहा जाता था, है ना, इन्फिडल्स। तो इन्फिडल्स की इनका बड़े मजे कर रहे हैं ये लोग तो खिलजी विलजी और इन सब के चलते बड़े मजे कर रहे हैं। तो उसने अटैक किया सबक सिखाने के लिए कि देखो इन्फिडल्स के संग कैसे डील करना चाहिए, इनको कैसे। तो वो कहने का मतलब वो तैमूर लंग जो था, है ना, वो चंगेज खां का जैसा खौफनाक। तो भारत बचा रहा चंगेज खां से, लेकिन तैमूर लंग ने बराबर कर दी बात। तो वो 13,000 से लेकर 12, 12,500, 1300 का 300 साल का वो पीरियड।
फिर शाहजहां के कोर्ट में आ गए थे अंग्रेज। 1650 से लेकर 1750 तक तो उन्होंने बंगाल पे कब्जा कर लिया था। 1750 तक तो अंग्रेजों ने पूरा कंसोलिडेट कर ली थी अपनी पोजीशन। तो 1700 से लेकर 1950, फिर 250 साल का पीरियड। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें कि दो कल्चर का इंटरेक्शन होता है, तो जो इंटरेक्शन होता है इसमें सबसे पहले कल्चरल कन्फ्लिक्ट होता है। कन्फ्लिक्ट कहां पर होता है? वैल्यूज में, ठीक है ना। वैल्यूज में कन्फ्लिक्ट होता है कि हिंसा, पहले जो कन्फ्लिक्ट हुआ वो किसमें हुआ? हिंसा या अहिंसा, युद्ध होना चाहिए कि क्यों नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा युद्ध किस स्तर कब होता है? जब युद्ध के अलावा कोई चारा ना रह जाए तो युद्ध कुड बी जस्टिफाइबल। दैट वाज वन व्यू। दूसरा व्यू था कि नहीं, कोई भी हालात में युद्ध इज नॉट जस्टिफाइबल। हाँ, तो फिर गर्दन ही कटवा लो अपनी, फिर सर्वाइवल बोलो कि नहीं हम तो मर जाएंगे लेकिन हम दूसरों को नहीं मारेंगे। तो हाँ, ये भी एक फिलॉसफी है कि हम मर जाएंगे लेकिन दूसरों को नहीं मारेंगे। तो ये वैल्यूज की बात हो गई। जो कन्फ्लिक्ट होता है कल्चरल लेवल पे वो सबसे पहले वैल्यूज का होता है, फिर भाषा का होता है, धर्म का भी होता है। धर्म का होता है देवता, लोगों में मेरे देवता तुम्हारे देवता, स्क्रिप्चर्स मेरे स्क्रिप्चर ऐसे कहते हैं। तो सिस्टम जो है, सोशल सिस्टम जो है, दूसरे के ऊपर लाभ देना, सोशलो सारी तीन एस्पेक्ट्स, इकोनॉमी, सोशल, पॉलिटिकल, तीनों चीजों का डोमिनेंस होता है। फिर तो जब तीनों लोगों का डोमिनेंस, तो यहां पर क्या हो गया? पहले तो क्या हुआ? एसिमिलेशन भी होता है, दो कल्चर के बीच आदान प्रदान भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। एसिमिलेशन भी होता है लेकिन एनिहिलेशन भी होता है। एनिहिलेशन मतलब कि अल्टीमेटली जो ताकतवर होते हैं वो तो डेफिनेटली डोमिनेट करते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कोई बोले कि ताकत तो मेजर चीज है, प्रभुत्व। अल्टीमेटली तो जो ताकतवर होगा वही डोमिनेट करेगा ना, और सिस्टम भी उसी वही। एक मिनट जस्ट। तो पावर की पूजा या पावर की महत्ता को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि पावरफुल नहीं होना चाहिए। तो पर बहुत से लोग बोलते हैं नहीं, पावर से ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान मतलब क्या होता है? परलोक, ब्रह्म ज्ञान। इस मतलब फिर वो इग्नोर कर, जो लोग संसार को ही बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते, या जो लोग आफ्टर लाइफ की बात करते हैं, वो इस लाइफ को ही सब कुछ नहीं मानते। तो ठीक है, फिर अगर आप इसी लाइफ को सब कुछ मानोगे तो पावर इज द अल्टीमेट थिंग। बट इफ देर इज अ लाइफ बियॉन्ड इट, तो लाइफ की ही इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। फिर पावर क्या करेगा? So when two cultures interact, there is a cultural conflict, there is a cultural assimilation, there is a cultural annihilation. अभी इंडियंस के आगे जो सिचुएशन है, इंडियन दो तरह के लोग हैं। एक है इंडियंस जो कि बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर। उनके सामने जो चैलेंज है या कन्फ्लिक्ट है वो अपनी आइडेंटिटी और कल्चर को बचाने का कन्फ्लिक्ट है, वो है, चैलेंज है।
What is the challenge they are facing? Indians who are living in Europe, America, Canada, or any other place, for them the major challenge is to maintain their identity, culture, right? उसका जो निगेटिव इफेक्ट इंडिया के ऊपर हो रहा है, बिकॉज फंडिंग तो यही लोग कर रहे हैं बाहर जो है एनआरआईज, तो उनकी बिकॉज दे वांट टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी, दे आर फेसिंग दिस चैलेंज, दे आर फंडिंग द फंडामेंटलिस्ट हिंदू गवर्नमेंट, हिंदुत्ववादी, टू असर्ट हिंदुइज्म. व्हाई? बिकॉज दे आर फेसिंग दिस चैलेंज अब्रॉड. तो उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए. इंडिया के सामने तो वो चैलेंज नहीं है टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी एंड कल्चर, बट एनआरआईज कन्विंस देम दैट इंडियन आइडेंटिटी एंड कल्चर इज अंडर थ्रेट, नॉट ओनली outside India, but even in India. Right? And this threat is mostly unfounded because अब Christianity is not कैथोलिज्म का एक्सपेंशन हो रहा था. अभी तो आपको मालूम है कि यूरोप में रिनेसेंस हो गया और धर्म का चोगा उतार के फेंक दिया गया, चर्च जला दिए गए. एंड मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस आर एग्नोस्टिक्स, नॉट एथिस्ट. सो देयर इज नो थ्रेट फ्रॉम क्रिश्चियनिटी टू हिंदुइज्म, क्लियरली. दिस टोटली अनफाउंडेड. नाउ that's why they are not taking it very loudly also, but they are Hindutvaadis, they are saying no, major threat is from Islam. आपको मालूम है कि इस्लाम भी को भी खत्म कर दिया. फंडामेंटलिस्ट इस्लाम जो है, वहाबिज्म इन सऊदी, सलाफी और वहाबी, these were the two major fundamentalist branches of Islam which were flourishing for last 200 years. But particularly Ottoman Empire के डिक्लाइन के बाद, right? तो उसके बाद फिर सऊदी, बट अभी आपको मालूम है कि सऊदी की प्रिंस वगैरह वो सब पुराना खत्म हो गया. अभी सब मॉडर्न सब पढ़ के आए हैं अमेरिका इंग्लैंड से. तो वहाबिज्म, सलाफी सब खत्म हो गया, अलकायदा खत्म हो गया, आईसी सब वीकेंड हो गया, काफ़ी कुछ खत्म हो गया. तो अब नाउ देयर इज नथिंग कॉल्ड फंडामेंटलिस्ट इस्लाम, जिससे कि हिंदुत्व को थ्रेट है, ऐसा कुछ नहीं रह गया. तो बोले कि नहीं, अभी पाकिस्तान में बचा है, अफगानिस्तान में बचा है. कौन बचे? तालिबानी तो बचे हैं. तालिबानी बचे हैं, पर तालिबानी एक समय थे जब अमेरिका ने खड़े करे थे, पर अभी जो तालिबानी है इनके पास कोई ताकत नहीं है. उसी तरह जो पाकिस्तान के भी जो फंडामेंटलिस्ट हैं, अब उनके पास कोई ताकत नहीं है कि वो किसी को थ्रेट कर सके. बट कहने का मतलब ये है कि वी आर लिविंग इन अ ट्रांजिशन पीरियड ऑफ क्लाइमेट चेंज, global trade, pandemics, and America-China, which will continue at least this सदी और 1900 से जो चालू है, 1900 क्या 1850 1880-90 से कह लीजिए, जब से कि ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी हुई और ऑयल इकोनॉमी जब से चालू हुई, तभी से सारा खेल चालू हो चुका है. या फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ही समझ लीजिए आप. तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब आया? 1870-80, है ना. तो 125 साल तो हो ही चुके हैं, करीब 150 साल तो हो चुके हैं. तो 150 साल हो चुके हैं, अनदर 100 साल और जोड़ लीजिए. ये ट्रांजिशन पीरियड चलेगा. अगर पूरा हिस्ट्री निकाल के पूरा अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर लोगे, तो ये जो ग्लोबल ट्रेड, उसके बाद जो ट्रांजिशन, उसके बाद जो ग्लोरियस पीरियड
ये युग जो अभी खत्म हो गया, युग तो खत्म हो चुका है। अब ये जो ट्रांजिशन पीरियड जो चल रहा है, जिसमें कि कैओस, कन्फ्लिक्ट, एसिमिलेशन, एनिहिलेशन, मार देंगे, खत्म कर देंगे, चबा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, भगा देंगे, ये सब चलता रहेगा। 100 साल तो चलेगा और कम से कम। तो जिसको भी थोड़ा सा हिस्ट्री मालूम है वो आराम से चीज देख सकता है। इसमें भारत की क्या पोजीशन रहेगी? भारत पहले से तो अच्छी स्थिति में आ गया है, गुलामी खत्म हो चुकी है, राइट। अब भारत के ऊपर चाइना का कितना इन्फ्लुएंस होता है नए एरा में? नए एरा में भारत को चाइना से रिकंसिलिएट करना पड़ेगा। चाइनीज सभ्यता का भारत पे कितना प्रभाव पड़ता है और भारतीय सभ्यता चाइनीज सभ्यता से कैसे डील करती है, ये अगले एरा को डिफाइन करेगा। अगर दुश्मन की तरह करेंगे तो फिर लड़ लो, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो तो मालूम ही है। तो नेहरू जी ने तो वो स्ट्रेटजी नहीं रखी थी, पर चाइना ने तब भी अटैक कर दिया था, ठीक है। तो बट बोलते हैं कि चाइनीज कल्चर को अगर बड़े भाई की तरह अगर ट्रीट करें तो वो अमेरिकन कल्चर की तरह नहीं है, खा जाने वाला, है ना। अगर ये सोचे कि चाइना इंडिया को खा जाएगा तो वो चाइना का कल्चर ऐसा नहीं है, इतना तो पक्की बात है, क्योंकि वहां भी लाओत्से और कन्फ्यूशियस हैं जो रहे हैं बड़े विचारक, और बुद्धिज्म का भी काफी असर है, ठीक है। बट वो बुद्धिज्म जो है वहां से तिब्बत से तो भगा दिए सब इन्होंने, दलाई लामा को। लेकिन चाइनीज पीपल एज सच आर वेरी नाइस पीपल, जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है, दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट। उनकी गवर्नमेंट फंडामेंटलिस्ट है, थोड़ी प्रॉब्लम ये है, पर इन फ्यूचर चाइनीज कल्चर विल फ्लरिश पीसफुली एंड इंडिया should cooperate and treat them as an elder brother. This is like a Singapore has done. So India, in a nutshell, should follow the Singaporean model with respect to China. And पहला चीज तो मैं डिस्कस कर चुका हूं कि हिंदुत्ववादी ग्रहण जो बढ़ गया था, जिसने कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का थ्रेड दिखाकर और हिंदुत्व को बचाने का जो एजेंडा रखा था, बेवकूफ बनाने का धंधा, या अदूरदर्शिता बोलिए, पर वो अदूरदर्शिता नहीं है, ये जुमलेबाजी और पतले सिरे की, बिकॉज इसका फंडिंग जो है वो एनआरआईज ने कर रहे थे। अब ये एनआरआईज जो फंडिंग कर रहे थे उनको अमेरिकन गवर्नमेंट और यूरोपियन गवर्नमेंट ऑलरेडी चेक कर रही है, तो अभी आप औकात में आ जाएंगे वापस। तो जो भी एनआरआईज जो कि हिंदुत्व एजेंडा को फंडिंग कर रहे थे, लाइक खालिस्तानियों की भी फंडिंग बाहर से होती है, वैसी हिंदुत्व की फंडिंग भी बाहर से हो रही थी, जो कि अब खत्म हो रही है। तो इंडिया वापस औकात में आ जाएगा, और जो आने वाली गवर्नमेंट्स हैं वो इंडिया को स्थिति को बेहतर करेंगी, और नेहरू जी की, गांधी जी की जो नीतियां थी, बिकॉज भारत के जो नए युग के आने के जो अरुण होता है ना, सुबह होने के पहले, सूर्य निकलने के पहले अरुणोदय होता है, तो वो अरुणोदय काल में जिन्होंने आने वाले स्वर्णिम युग की विभीषिका और मॉडल दिया, गांधी नेहरू मॉडल, उस मॉडल पे चलते हुए ही भारत का उद्धार होगा। कांग्रेस पार्टी उसमें सेंट्रल रोल प्ले करेगी, और वो कांग्रेस पार्टी पहले वाली नहीं रह गई, जो कि कुछ लोगों का वर्चस्व उसमें होता था, वर्चस्व की लड़ाई वाली अगेन। और वो लोग जो वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस में लड़ रहे थे वो भी हिंदुत्ववादी थे, ऐसा नहीं कि वो कोई अलग थे।
उसमें खालिस्तानी भी थे, उसमें कम्युनिस्ट नक्सलाइट भी थे। तो जो कांग्रेस का प्रॉब्लम ये है कि वो नक्सलाइट से, हिंदुत्ववादियों से और उससे सबसे कंट्रोल में था पहले वाला कांग्रेस। होपफुली अब जो नया आने वाला कांग्रेस होगा वो इन सब ताकतों से, तमिल एलम को चुनौती दी राजीव गांधी ने, उसको मार दिया। खालिस्तानियों को चुनौती दी इंदिरा गांधी ने, उनको मार दिया। तो ये खालिस्तानी, तमिल एलम और जितने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, अब हिंदुत्ववादी ओनली एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रहा है, इसको कांग्रेस अच्छे से डील कर रहा है। तो आने वाला फ्यूचर इज वेरी सिक्योर्ड ऑफ इंडिया अंडर कांग्रेस regime, which will be which work independently, not under influence of any extremist groups, and which will deal appropriately with China as the elder brother following the Singaporean model. Thank you so much.